Welcome in Homeopathic Canada, and this is the New Year morning here in Canada, and this is New Year evening in India. So Happy New Year to everyone. Today we are going to discuss about homeopathy and advanced pathology. Today our guest is Dr. Shoaib Alam Khan from India. I just want to mention a few things here. First is success and then is failure. Every person, especially in homeopathy, he always go through one system that is a continuous study, continual learning. During this process, he failed many times. Sometimes because of lack of understanding, because of lack of knowledge, he didn't understand what is going on in front of the eyes. That's why in this situation, we need a teacher. And that teacher gave us a helping hand to understand the situation. That's why every field, everywhere, we need a teacher. Books give you a guidance, but how to use it, where to use it, and what we have to see, where we have to see, this is only given by a teacher. So today, that's why today I invited teachers who teach so many students all around the world. He cured many cases, even some incurable cases. Sometimes people said these are incurable, but they cure it. Life give you a different opportunity day by day because every patient teach you a lesson. Sometimes if we cure few cases, after that we have ego that, oh, I can understand, I understand homeopathy very well, but suddenly one person come in front of you and your all knowledge becomes zero. At that time we need a teacher, we need a person who guide us, we need a mentor give us direction so we can easily understand that personality which is standing in front of us. Shortly, Dr. Shoaib Alam Khan will join us and we will start our today's session. During this process, if you guys have any questions, anything you want to ask, anything regarding that different case, you can ask freely so we can learn more thing. So but just we are waiting for them, then we will start. And one more thing, if you want to suggest anything, you all are welcome, so we can. Yes. Every time, yes,
He's joined today. So, few things I just want to mention here. Today is the birthday of Dr. Shoaib Alam Khan sir, and I just want to congratulate him because 1st of January he is the birthday of Dr. Shoaib Alam Khan sir. Thank you, sir. Thank you so much. And I also my birthday. बोलो तो birthday happy बोलो. birthday, sir. Happy birthday. Thank you. So, with my request, on my request, sir, because today, sir, give a gift for everyone on their own channel, but on my request, he is here with us, and he will explain homeopathic in his own style, in his own way. So, during this session, we will discuss advanced pathology, homeopathic treatment, way of prescriptions, and how to manage. Because in advanced pathology, if you don't know the management, everything will be gone. Because every case is depend on management. So every doctor become a student for whole life, and student, we are students and we are in learning process, and every learner need a teacher, and we in our process, in our system, we have only two teachers. One is our patient who teaches every day, every moment, every minute, and when we stuck, when we homeopaths stuck, a teacher gave us a way. So today I would like to welcome Dr. Shoaib Alam Khan sir, who has a more than 40 years of experience in this field. He cured many cases, many advanced pathological cases, and even I was with sir in 10 years before, because I met him first time in Haryana, and I saw that case. After that, I met him in Jaipur. I saw one case over there, and many time online I saw many cases who mention him by on his channel. So during this process, during this conversation, if you guys have any question, anytime, and anything you didn't understand, let us know so we can explain you more clearly. This is the birthday evening. This is the New Year evening, and this is the new learning. I'm not wasting any time, and I just mention Dr. Shoaib Alam sir. Sir just started, and we will going to start our today's sessions. Over to you, sir. Thank you. हम बहुत कुछ जोगिंदर, पहले तो हमारा आज बर्थडे का खुशी में हम अपने फॉलोवर को बहुत अच्छी गिफ्ट देंगे हम, जिसकी कोई कीमत नहीं है। बहुत सा जगह में देखोगे, बहुत सा वर्ड कुछ ऐसा होता है जिसको हम इंग्लिश में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तुम उसको करोगे। और दूसरी बात है कि होम्योपैथिक बड़ा सिंपल वर्ड में अब तो एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं। बहुत से तो सब फॉलोवर भी डॉक्टर हैं, सब जानते हैं कि होम्योपैथिक क्या है। और ऑर्गेनाइज भी ट्रोली 1 to 5, 7 के अंदर और कुछ 2-4 और अफरोजम है जो हम अपने गुरु लोगों से पढ़ा सीखा। तो सबकी इम्पोर्टेंस है ये कि होम्योपैथिक में कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करना है। कभी कभी क्या होता है, घर पर भी, तुम्हारे घर में भी, मेरे घर में भी
तकलीफ हो गया, जैसे हमारा है अंकलाइजिंग का प्रॉब्लम है, तो कभी कभी एक्यूट पेन आ जाता है। ठंडा में अभी भी हुआ, बहुत पेशेंट का भी आता है एक्यूट पेन। तो एक्यूट पेन जब आ जाता है तो एक्यूट पेन बहुत डिफिकल्टी पैदा करता है। तो बहुत बिग बिग डॉक्टर लेजेंड रह चुके, उन्होंने कहा है कि एक्यूट पेन, एक्यूट प्रॉब्लम संभालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम लोग में भी कोई साइनोसाइटिस है, माइग्रेन है, अर्थराइटिस है, रुमाटॉइड अर्थराइटिस है, और गेस्टाइटिस है, पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम है, तो उस सब का पेन होता है, एक्यूट बहुत खतरनाक होता है। गॉल ब्लाडर है, तब इलाज जो तो पैथोलॉजी जितनी भी बिग है, उसका कार्सिनोमा है, मैलिग्नेंसी है, तो उसका पेन बहुत खराब होता है, एक्यूट पेन खासकर। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट अच्छे से करना है ताकि एक्यूट पेन की सिविरिटी ना आए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो नेचुरल इम्यून बॉडी को, रेजिस्टेंस को पावरफुल मजबूत बनाता है, जिससे पेशेंट खुद फाइट करके उसको हटा सकता है। अब जैसे एक केस हम दिखा रहे हैं, बूढ़े आदमी का, इसको पहले देखो, क्योंकि प्रैक्टिकली देखना बहुत जरूरी है। ये आर्थराइटिस था, 5 से 7 साल से प्रॉब्लम था। वो आर्थराइटिस, चल नहीं सकते थे, एजेड आदमी थे। देखो तो रुक गया है क्या? उनका तरफ से रुका है। मेरा ठीक है जी, तो आवाज जाता हूँ? हाँ जा रहा है। नहीं सर, सही है, बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, ठीक है, दिखा रहे हैं। ये वाला दिखा दो, बिफोर को दिखा, थोड़ी आराम करने चाहिए इनको। हाँ इसको देखो, इसको पूरा दिखाना before। ठीक है, बिफोर अभी अब तक नहीं दिखा। नहीं, ये बिफोर है, जब बहुत हम ऑनलाइन से देखा है। ये बिहार में कोई जगह रहते हैं, झारखंड की तरफ। झारखंड, रांची में। जी, तो यहाँ पर उनके फैमिली के लोग हैं, इनका भगना उगना सब हमारा पेशेंट है कलकत्ता में। तो उन्होंने दिखाया हमको कि 5-6 साल से वो चल नहीं पाते हैं, एलोपैथिक दवा खाते पेन हैं। किलर भी खा रहे थे कुछ। पेन उन किलर कंटिन्यू 2-3 साल से चल रहा है, तो स्वेलिंग भी आ गया है, और किडनी का भी रिपोर्ट थोड़ा सा, यूरिया क्रेटिन भी थोड़ा हल्का फल्का नजर आया है। तो उन लोग डर गए हैं। तो हमसे उसका भगना कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद हमने ऑनलाइन से केस टेकिंग किया। केस टेकिंग करने के बाद पहले तो हमने फिर तुम अभी पहले देख लो, चलो आफ्टर देखा, आफ्टर 1 महीना के बाद का फिर दिखाओ, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। विदाउट स्टिक अब चल रहा हाँ, बोला करो। है 1 महीना। फिर ये 1 महीने के बाद का है। स्टिक चलना स्टार्ट। फिर उसका भगना जो है 2 महीना के बाद फिर दवा लेने आया, तो उसका भी इंटरव्यू सुनिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेरे बड़े मामा रविंदर, आवाज आ रही है? पेशेंट है, 1 साल से उनको जोड़ों में दर्द, पैर में दर्द, चलने फिरने में बहुत तकलीफ होता था। वो झारखंड के रहने वाले हैं। बहुत तकलीफ उनको था, पर मैंने
डॉक्टर शोएब आलम खान को हाल से उनका ऑनलाइन इलाज ट्रीटमेंट करवाया। 1 महीना ही में उनको 100% में 60% इम्प्रूवमेंट दिखा है। और उनका सबसे पहले वीडियो जो था वो एकदम नहीं चल पा रहे थे, घंटा लेकर चल रहे थे, घंटा लेकर भी नहीं चल पा रहे थे। पर उनका ट्रीटमेंट होने के बाद, डॉक्टर शोएब आलम खान होम्योपैथी डॉक्टर है, उनका ट्रीटमेंट होने के बाद वो बेहद अच्छा बिना बिना छड़ी बिना डंडा का चलने लगे। और अब उनका ट्रीटमेंट 2 महीना हो गया ट्रीटमेंट हुए। अब वो पूरा बाहर भी अच्छा से चल पा रहे हैं। बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा है डॉक्टर शोएब आलम खान के ट्रीटमेंट कराने से। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। ठीक है रविंदर, तुमने देखा ये यस सर। बहुत चैलेंजिंग है, इसको बता रहे हैं। तो हमने पहले इसको सीपिया प्रिस्क्रिप्शन किया, 6 दिया था, फिर एक हफ्ता के बाद 12 दिया, तो उसको रिलीफ मिला फिर काफी। फिर उसके बाद हमने उसको नोज़ोट्रिप्सिन सिफिलाइनम हमने फिर प्रिस्क्राइब किया। ज्यादा नहीं, 15 दिन के बाद ही हमने देना चाहते थे, लेकिन इतना पेन था तो हम सोचा पहले ये दिया दवा, फिर सिफिलाइनम में कभी कभी सिफिलाइनम को बहुत सोच समझ के प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि थोड़ा एग्रेवेशन का भी खतरा होता है। तो हमने सिफिलाइनम किया प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि इनको डार्कनेस, शाम, ट्यूबलाइट, इवनिंग, जहां सन डाउन हो जाता है उसके बाद से इनकी तकलीफ बढ़ने लगती है, और जहां सुबह होता है रोशनी आती है तकलीफ कम हो जाती है। ऑल प्रॉब्लम वर्स्ट बाय नाइट। नाइट एग्रेवेशन सब सिफिलिटिक में होता है, मार्क्सॉल में भी है, लेकिन इसका शाम होने के बाद ही से। तो हमने उसमें और भी केस टेकन किया था, सेलाइवेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग था माही उसमें। फिर हमने उनका यंग टाइम का भी हमने पूरा हिस्ट्री लिया, और वो बच्चे ही से जब भी सोते थे तो उनके सेलाइवेशन होता था। हम रात में सोते हो तकिया उकिया भीग जाता था, और ऐसा भी था कि रात डार्कनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर था। की नोट लाइक फीचर्स, हमने इस बेस पर उनको सिफिलाइनम 200 दिया था। सुबह सुबह आधा कप से कम पानी में मिलाकर 2 चम्मच पीना, बाकी फेंक देना, रिलीफ मिला। फिर हमने कहा 15 दिन के बाद फिर सिफिलाइनम 1 ml आधा कप में मिलाना, 2 चम्मच पीना, बाकी फेंक देना। हाँ, बीच में बहुत दर्द होता तो हम बीच में ये कहा था जरूर कि रस्तक 12 नंबर 15-15 मिनट पर ले लेना, पर आज वो नहीं तो नहीं आराम मिले, क्योंकि पेन बहुत भयानक होता था। पेन उन किलर खाने के बाद भी कुछ काम नहीं करता था, तो हमने ये कहा था। इसलिए कि होम्योपैथिक एकदम प्रैक्टिकल है। हम पहले प्लाज्मो बोला 5-5 मिनट पर, 10-10 मिनट पर, नहीं बर्दाश्त होता था दर्द तकलीफ, पेन किलर खाने के बावजूद ही फिर आधा आधा तोड़ने लगे, तो 2-3 साल से खाते थे वो, स्ट्रॉइड भी खाते थे।
तो मेरी T12 से आराम मिल जाता था, लेकिन सिफिलाइनम 1 देने के बाद फिनिश, खत्म, पेन उन सब एकदम फिनिश, मेडिकल जादू की तरह। तो बहुत स्टार्टिंग में हमने देखा था अपने 15 साल 20 साल के प्रैक्टिस में देविंदर, कि हमने 1M दिया, कभी तो देखा था कि अग्रेवेशन हुआ था एक दो केस में, तो हम बहुत अलर्ट हुए। फिर तो और भी कुछ मेंटल सिम्टम लेना पड़ता है। तो ये आदमी का एक आदत था जो बड़ा हमको प्रोमिनेंट मिला, कॉन्कोमिटेंट। ये हमने उनकी वाइफ से भी बात की, इनका भगना से, इनका और भी भाई यहाँ रहता है, वो सबसे ये हाथ धोने की आदत बहुत थी। 4-4 5-5 दफा वो साबुन लगाते थे। इम्पल्स टू हैंड वॉश, ये बिग लेटर में है बोगत। आपको फिर मिलेगा, एंट में बहुत अच्छा मिलेगा, व्हीलर में, बोरिक में भी बहुत अच्छा मिलेगा। इम्पल्स टू वॉशिंग हैंड्स, मैनियक टाइप भी बोला जाता है, कि जैसे एक बात याद रखोगे, आज बहुत अच्छी बात एक कह रहे हैं हम देविंदर, मैनियक वर्ड भी है, समझे, मैनिया लाइक हैंड वॉशिंग। व्हाट डू यू मीन मैनिया? मैनिया तो होता है पागल, जो पागल होता है, पागलपनी, जुनून। एक आदमी बहुत होशमंद, बहुत नेक, कोई नॉर्मलिटी नहीं, माइंड में कुछ नहीं, लेकिन वो हाथ धोते वक्त काय पागल हो जाता है, बार बार टोकने पर मजबूर हो जाता है। वहां पर आदमी ने कहा, आप इतना हाथ, अभी तो धोए, फिर गए, फिर साबुन, फिर 5 दफा 10 दफा हाथ ही का है। दैट इज कॉन्कोमिटेंट। ऑल्सो मेंटल मेकअप, मैं विदाउट मेकअप, विदाउट कॉन्कोमिटेंट के मैं प्रिस्क्राइब नहीं करता हूं। तो ये दिखाया तुमको, ये प्रैक्टिकल ट्रेमेंडस रिजल्ट। और मैं एक तुमको ये लार्ज पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम का एक और हम केस आप तुमको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक बच्चा का केस है जिसको 5-6 बरस होगा उम्र, और एक एजेड आदमी का है, और दोनों को हम तुमको एक्सप्लेन करते हैं। अभी एक बच्चा का हम सिफिलाइनम दिया था, बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट हुआ था। उसका भी था, कन्वर्सन होता था बीच बीच में, महीना में 15 रोज 20 रोज में फीवर होता था हाई, और कन्वर्सन हो जाए करता। तो हमने, वो 5-6 साल का था, हमने देखा, लुकअप, पाउंटिंग लिप्स, बिग बेली, ये बहुत कम लोग जानते हैं, प्राउड की बात नहीं है, अल्लाह माफ करे, ये सब ऊपर वाला कराते हैं। लेकिन मेरी एक आदत है, ऑलवेज सर्चिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, टारगेट ऑलवेज पेशेंट, नॉट डिजीज, वट एवर मे बी द पैथोलॉजी, जितना लार्ज पैथोलॉजी हो, इवन टू कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट एंड कैंसर, टारगेट पेशेंट। जैसे पाउंटिंग लिप्स, बिग बेली, एंटी सोशल हरकत। व्हाट डू यू मीन बाय एंटी सोशल? इररेस्पॉन्सिबल पर्सन, बदमाश, बदमाश
बदमाशी करना, किसी को बेइज्जत कर देना, एंटी सोशल यही होता है। पाउंटिंग लिप्स का मतलब होता है, आप देखिएगा होठ आप निकालिएगा तो ऐसे होठ रहता है, फीमेल थी वो, होठ रहता है, पेट निकला रहेगा, बिग बेली। और ये रहेगा लुकअप, एंटी सोशल हरकत। जब भी सोएगा पूरा तकिया भीग जाएगा सलाइवेशन से, और जब भी अटैक हुआ है डाउन के बाद ही, हमेशा हमेशा। हम पहले एक दो दवा दिया था, दो दवा कैलकेरिया का भी हमने दिया था, हमारा फेल किया। कैलकेरिया का और लाइकोपोडियम भी मेरा फेल किया। सिफिलाइनम के बाद फिर उसको फीवर और अटैकिंग कन्वर्सन बंद हो गया, खत्म हो गया। तो उसमें क्या था, हमने जब केस टेकिंग किया देविंदर, तो हमने जब केस टेकिंग किया था तो हमने उसके फादर का भी केस टेकिंग पूछताछ किया था कि आप जो है इस बच्चे का इलाज किया, जब हम 6-7 साल का, 3-4 साल से उसको महीना डेढ़ महीना कभी 25 में कन्वर्सन और फीवर आ जाता था। तो हमने कहा कि आपका केला में कि आप पीना ड्रिंक, बोले हाँ ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं बहुत बहुत, और शराब के साथ साथ हमने कहा आपका बैड कांटेक्ट रहा है, हाँ, आपका पेशाब का रास्ता में कभी कोई जख्म, बोले हाँ हमने एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया था, एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बाद जख्म हुआ तो वो ठीक हो गया। तो सारा बैकग्राउंड, सारा हिस्ट्री लेने के बाद आई प्रिस्क्राइब सिफिलाइनम। देविंदर, द ट्रेमेंडस रिजल्ट। उस उस बच्चा को भी हिल स्टेशन, ऊंचाई पर जाने का बड़ा शौक, और सिफिलाइनम में भी है बेटर बाय हाई एल्टीट्यूड, हिल स्टेशन ऊंचाई पर का बहुत शौक, बहुत अच्छा लगता है, जैसे सी बीच मेडोराइनम है। तो ये हमने दिया, वो ठीक हो गया। राजा जी, एक और केस ये दिया है कि नहीं दिखाओ। ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का केस है, ठीक देविंदर, इसको देख लो, फिर हम एक सिफिलाइनम का बोलेंगे। बिफोर कहिए, ठीक है। थोड़ा सा पीछे कीजिए, पीछे कर, अब ठीक है जी। और आफ्टर का भी दिखाओ। ये रहा आपका आफ्टर, ठीक है। फिर उसका ये देखो, एक मिनट, ये इनका इंटरव्यू है इंटरव्यू सुनो, आवाज कुछ ले पेशेंट का। सुनो। मैं रांची का रहने वाला हूँ। मैं रांची रिम्स में दिख रहा है तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि आपके जुबान में कैंसर है और इसको काटना पड़ सकता है। मैं बहुत परेशान हो गया। बाद में मेरे को किसी ने बताया कि कलकत्ते में शोएब आलम खान साहब कैंसर के लिए बहुत माहिर डॉक्टर हैं, आप उनसे रब्ता कायम करें। तो मैं इनके पास आया, तकरीबन 6-7 माह होने जा रहा है, 6 महीना होने जा रहा है। पहली बार जब दवा लिया तो एक 15 ही दिन में करीब
30-40% मेरा बिल्कुल अच्छा हो गया और एकदम जादू की तरह समझिए कि एक 5-6 महीना में है एकदम बिल्कुल खत्म हो गया और बिल्कुल मैं ठीक हूँ। जब मैं आया था तो इनके पास ठीक से बोल नहीं पाता था, जुबान में लड़खड़ाहट थी, खाने में भी दिक्कत बहुत थी और अभी अल्लाह की ज़ात से बिल्कुल सही है। आपको वो जो आपको बैक्सी हुआ था तो कैंसर निकला जी, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा उसका नाम था जी। तो आपको डॉक्टर ने क्या कहता है, एलोपैथिक डॉक्टर ने कि जुबान काटना पड़ सकता है। किसी ने मेरा नाम आप जिया भेजा जी जी, सुनने के बाद आपको पहले ही हफ्ता के दवा में तो बहुत राहत मिला था, करीब 30-40%। अभी ट्रीटमेंट आपका मुश्किल से 5-5.5 महीना होता है, आपका अभी तो एक तरह से खत्म है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक देविंदर, अब ये केस बहुत खूबसूरत हसीन मेरे लाइफ का केस है, जिंदगी का बहुत हसीन केस में से है और यही सब केस हमको मतलब बहुत ऊपर लाया है, बहुत मेहनत कराया है और बहुत जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। जैसे तुमने हरियाणा में देखा था, वहां भी बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन 2-4 दफा सुंघाया था, वो एडवांस कैंसर था, उसको रिलीफ मिल गया था, ब्रेन ट्यूमर का मरीज था, उसके ब्रेन में पानी आ गया था। ये हमसे जब आया था तो ये हमसे बात करता था ऐसे, वो ऐसे करके बात करता था ये पेशेंट। तो हमने इस कॉमर्स सेल का में हमने केस टेकिंग किया। ये सादा सादा कुर्ता और पैजामा पहनता था व्हाइट। तो हमने देखा इसको, घुसा शेप बना के, तो हमने बोला कि ये कपड़ा आप कब पहने हैं? बोले ये तो आज सुबह आए पहने। हम बोला कब उतारिएगा? बोले कल उतार देंगे। हम बोला फिर क्या पहनते हैं? बोले कुर्ते ही पैजामा, हम ज्यादातर 90% मेरे पास व्हाइट व्हाइट है पहनते हैं। फिर हमने सब केस टेकिंग करने के बाद फिर हमने उससे जूता मांगा, लेके आइए। जूता लेके आया, चमड़े का था, देखा पॉलिश किया हुआ था। हम बोला ये जूता आप साफ रखते हैं? बोले डेली जब भी जाएंगे कहीं भी मेरा जूता एकदम साफ। हम बोला घर में? बोले घर में चप्पल पहनते हैं। हम बोला चप्पल ऊपर भी? बोले चप्पल भी हम धोते हैं। हम बोला क्या? बोले हर 2-3 के बाद साबुन से उसके फीता उता का अंदर में, वो बोला कि फीता के अंदर में गंदा उंदा रहता, वो सबको साफ करके निकालते हैं ब्रश से। क्या है कि हम लोग फास्टिडियस को अच्छी तरह, हम लोग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम 2-3 जगह ये देखा है, हमारे बड़े भाई भी अंसा सर, वो हमारे टीचर हैं, वो भी हमको दिखाए थे स्टूडेंट लाइफ में। एक दफा रास्ता में एक फकीर बैठा हुआ था, उसको दिखाए थे। तो और मुजिमदार साहब के पास ले जाते थे, तो वहां भी बताए दिखाए थे। तो हम उसको पढ़ते थे, समझ में नहीं आता था। फास्टिडियस और भी ड्रग है, लेकिन वो फकीर जो था, हम लोग 10 बजे का चैम्बर खत्म करके आते थे। हमारे बड़े भाई एलएम खान साहब, वो हमारे टीचर हैं, तो उन्होंने हमको दिखाया कि देखो ये रोज पानी गिर रहा था, वहां पर रोज पहुंचता था अपना मांगने वाला 30 जूता चप्पल डेली। तो बोलते थे इनको देखो। देखा, बोले देखो ये एक फास्टिडियस है, देखो एक गरीब फकीर फूट पर रहता है, लेकिन वो सब साफ सुथरा करके जाके वहीं हम लोग के सामने ही फूट पर सोता है। हम देखते थे। तो मेरी एक आदत है कि कोई चीज हम देख लेते हैं, इस बेस पर प्रिस्क्रिप्शन हम देखा ऐसा ऐसा तो हम उसके पीछा पड़ जाते हैं। ये मेरी एक अपनी आदत है।
तो हम 20-30 साल फास्टिडियसिस सब पर बहुत खटा, बहुत देखा, और फिर निकाला। जब जब निकाल के दिया है तो 100% रिजल्ट मिला हमको। फास्टिडियस फिर और भी लेजेंड लोग हमको मिले, ये मेरी नसीब है। हमारे भाई साहब ने जहां जहां बोला लेजेंड सबके पास गए, जो नहीं देखना था उसके पास भी गए, सब देखा सीखा। तो हम जहां तक देखा है डॉक्टर देविंदर कि फास्टिडियस का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम नाम भी नहीं लेंगे, बहुत जगह हम बंबई में भी गए हैं, देखा है फास्टिडियस पढ़ाते हुए भी लोग को, बताते हुए भी, और जो केस स्टडी में दिया गया जो तरीका से, वो फास्टिडियस है नहीं। हमने उसको काट के निकाला है नहीं। फास्टिडियस फकीर हो, गरीब हो, पैसा वाला हो, बहुत पैसा वाला भी रहता है, गंदा रहता है, तुमको सूट बूट देखने में लगेगा लेकिन वो गंदा रहता है अंदर से, फास्टिडियस नहीं रहेगा। फिर हमने देविंदर, आज जो हम फास्टिडियस बोल रहे हैं, जो भी डॉक्टर फॉलो वो लक्की है। आज बड़ा बात नहीं है, बहुत छोटा मोटा हम आदमी है, लेकिन ये वर्ड, ये चीज आज सीखने नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा बड़ा तोप लोग है, हम सब जानते हैं, देखते हैं, और सब लोग आस्ते आस्ते डॉक्टर देविंदर प्रैक्टिस छोड़ चुका है। लोग प्रैक्टिस करना वेरी डिफिकल्ट टास्क। और आज हम जो फास्टिडियस बता रहे हैं, जो भी तुम्हारा हमारा फॉलोअर है, वो आज नगीना एक कोहनूर का हीरा मिलेगा उसको, जिसका अरबों रुपया दाम है, कम से कम 20-25-50 करोड़ का कीमत है, जो एक वर्ड फास्टिडियस हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फास्टिडियस गरीब हो अमीर हो जो हो, जब हमने उस आदमी से कहा कि जाने के बाद आप अगर आप जूता पहन के अगर निकले हैं तो आप जूता को साफ कर, बोले हाँ पॉलिश करके हम निकलते। हम बोला खुदा ना खास्ता भूल के, बोले भूल ही नहीं सकते। देविंदर ये वर्ड इस्तेमाल किया उसने, पेशेंट ने, हम भूल का सवाल ही नहीं है। सब भूल सकते, ये नहीं भूल सकते। जूता चप्पल इसका कोई वक्त नहीं। हम भी खुद पहन के चले आते हैं, गंदा भी रहा तो मेरी वाइफ कह दफा देखिए, बोले रे उसको थोड़ा कपड़ा साफ कर लीजिए, गंदा है, हम निकला है कह दफा। तो वो हमको जवाब क्या देता है डॉक्टर देविंदर, जब तक उसमें जिंदगी नहीं मिले, वो एक फास्टिडियस ग्रेट की नोट लाइक सिम्टम एंड फीचर्स, ग्रेट की नोट, तो वो बोलता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हम बोला कि आप स्त्री कपड़ा पे, बोले यस। हम बोला कि अभी उसकी वाइफ झारखंड थी, बोले कौन स्त्री करता है, तो बोले हमारी वाइफ करती, नहीं होता तो हम खुद देखते हैं। जरा सा पाकिट उकिट के पास, जरा सा कॉलर के पास थोड़ा सा भी स्त्री प्लेट नहीं होता तो फिर हम दोबारा उतार के उसको करवाते हैं। तो हम बोला जरा सा वाइफ से आप फोन से बात कराइए, बात से कराए। तो हमने फिर यही बात पूछा कि रोज ये आयरन करते कपड़ा, बोले हाँ। हम बोला क्या आप पहनने के बाद भी उतार देते हैं? कभी कभी बोलते हैं कि हाँ तुमने आयरन ठीक नहीं किया, बोले हाँ। हंसने लगी, हंस के बोलने लगी वो तो ज्यादातर करते, बोला और सही हुआ। हम लगा सही रहता है, बोले हाँ। क्रीच मतलब ऊपर खास शोल्डर वोल्डर के पास ठीक से नहीं रहता, फिर कराते तब पहनते हैं वो, तब पहनते हैं वो। हम लोग ऐसा डॉक्टर हम लोग पहन के गए, क्लीन कोर्स नहीं हुआ, चल गया। दैट इज फास्टिडियस। फिर हमने कपड़ा, फिर और एक बहुत इंपॉर्टेंट आज बात बता रहे हैं तुमको, इसी पर हम चले। फिर हमने कहा कि आपका थोड़ा आप कपड़ा उतार के केबिन बंद किया। बहुत गौर से सुनोगे देविंदर, आज ये चीज जो है ना, आप बहुत कीमती समझा रहे हैं।
बाय गॉड बहुत कीमती, आज एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखने की और समझने को और सीखने की चीज है। तो हमने कहा आप केबिन बंद करके, हम बोला कपड़ा उतारिए, शर्ट उतारिए, कुर्ता उतारिए। फिर हमने यहाँ का बाल देखा, काटा हुआ था। हम बोला कब आप, बोले नहीं हम घड़ी में रखते थे, हम ये जहां बचता हो तब प्लेन कर देते हैं। तो हमने पूछा, नाखून, नेल, पैर उनका सब काटा हुआ था। दैट इज फास्टिडियस। हम बोला आप अपने घर में सोते हैं, आप अपना चादर, बोले हाँ 2-3 चादर एकदम पड़ता है, मेरा पानी का बोतल रखा रहता है, थोड़ा सा हमला कभी ऐसा भी कुछ ऐसा, बोले हाँ जरा सा भी ऊंचा नीचा अगर ढक के रखा हुआ तो उठ जाते, उसको बराबर उठ के वो बराबर करेगा तब लेटेगा, तभी नींद आएगा। फिर हमने सिंपेथी के बारे में पूछा, तो हाँ गरीबों का वो मदद करता है। लव म्यूजिक, ऑल्सो सीपिया, म्यूजिक पसंद करता है, हॉट माइंड है, सिंपेथी है, सिंपेथी फॉर अदर्स है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, फास्टिडियस है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर हमको मिला, ये सब एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था, इंजॉय थंडर स्टॉर्म, वाचिंग इंजॉय थंडर स्टॉर्म। बोले हमको बहुत अच्छा लगता, मजा आता, हम तो भीगते हैं। आज भी होता है तो हम निकल जाते हैं, बैठ जाते हैं जाके, थंडरस्टॉर्म, खूब बिजली, बादल, तूफान हो रहा, कड़कड़ा हवा आ रहा। बोले मेरी बच्चे से आदत है, जाके घूमते हुआ जाके बैठ जाते हैं बागीचा गेट पर, बहुत अच्छा लगता, बहुत मजा आता है। वो जो कहने का जो तरीका था, बोले डॉक्टर साहब बड़ा मजा आ जाता है। हम बोला आज भी, बोले आज भी डॉक्टर साहब दिल करता है, नहीं जाने देती, वाइफ पना करती है, सर्दी लग जाए, लेकिन हमारा दिल मचल जाता है डॉक्टर साहब, जाके बैठते मस्ती आ जाता, मजा आ जाता है। तो these are the features and unhappy of life। इनके बाप ने दूसरा शादी किया, फिर वो माँ आई, तो इसका लाइफ भी बहुत शौक, ग्रीफ वाला, दुख वाला, अनहैप्पी गुजरा। ये हिस्ट्री, और बैक हिस्ट्री में भी शुगर, टीबी और कैंसर था हेरिडिटी में। तो these are the mental symptom, mental makeup I prescribe कार्सिनोसिन। ये दिखाया तुमको एक ऐसा प्रैक्टिकल रिजल्ट, इतना जबरदस्त है, जो पहला दफा और बात नहीं कर पा रहा था, 1 हफ्ता के बाद बात कर रहे, अब बहुत क्विक रिजल्ट मिला। बात देने के बाद तो आधा कम हो गया था, बातचीत करने लगा, थोड़ा डिग्लूटेशन में भी प्रॉब्लम आता था, एक डर, फेयर, खौफ, ये सब खत्म हो गया। आई प्रिस्क्राइब कार्सिनोसिन। मैं और तुमको बता रहा हूं, हाँ ज्यादा सिम्टम, ये सब कॉन्टेक्ट, इसमें तुमको जो भी था इतना प्रोमिनेंट था, कॉन्कोमिटेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के। हाँ एक चीज है जरूर, जो हमने फास्टिडियस इंडिविजुअलाइज किया था, वो जो आज बोला है, इसको जितना भी जाने ज्यादातर फॉलोवर जाने, जो हमने निकाला है वो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर देविंदर जाने लोग एकदम बोल नहीं सकते, मेडिकल ऐसा हमने केस टेकिंग में जिस चीज को बच्चा तक को दिया है, अभी कुछ दिन पहले का बात है, वो हम चाहेंगे कि इसमें एक्सप्लेन करें। कार्सिनोसिन में ये केस में कुछ पूछना उछना है तुमको तो बता सकते हो। जितने भी लोग सुन रहे हैं इसको, अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड दिस केस और जो पहले केस हमने डिस्कस किया था,
तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ लीजिए। दूसरा, मैं एक, एक और बच्चे का हम अभी एक्सप्लेन किया तो उसको भी हम कह दे रहे हैं। आर्सिनोसिन, एक छोटा बच्चा था, उसको खांसी बुखार नहीं जा रहा था जल्दी जल्दी, 3 बरस का बच्चा होगा। हमने कम से कम 5-6 मेडिसिन दिया, फेल हो गया। तो हमने देखा, वो सब फैमिली पेशेंट है मेरा, तो हमने देखा कि वो बच्चा, उनकी दादी का कहना है कि बच्चा जो है खांसी जा ही नहीं रहा था 3-4 महीना से, फीवर आ जा रहा, तबीयत खराब हो जा रहा, कफ खास कर जा नहीं रहा। वो बच्चे का डॉक्टर को भी दिखाई, अच्छे अच्छे दवा फायदा नहीं हो रहा। हम भी दवा दिया, हमारा भी 5-6 मेडिसिन फेल किया। तो फिर हमने देखा, उनके दादी ने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर ये बच्चा चलता है या आगे बढ़ता है, कोई सामने कुछ गंदा चीज फेंका रहता है तो ये बच्चा रोने लगता है, चिल्लाता है, रोता है। जब तक उसको साफ नहीं कर दो, हटा नहीं दो, जब तक वो चुप नहीं होगा, आगे बढ़ेगा नहीं। तो साफ कपड़ा लत्ता पहनना चाहता है। बोले एक दफा डॉक्टर साहब, इसकी माँ भी नहीं समझ पाई, वो दाल या चाय खा रहा था, चाय या दाल का 1-2 ड्रॉप उसके कपड़े पे गिर गया, तो रो रहा है कि दादी, खूब रो रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा कि पेट दर्द हुआ कि क्या तकलीफ हुआ, उसकी माँ भी नहीं समझ। तो उसकी दादी बोली कि देखो ये भीगा हुआ है, ये जो चाय का ड्रॉप गिर गया ना, इसीलिए रो रहा है, इसको बदलो। वो साफ सुथरा था, जब तक नहीं बदलोगी वो चुप नहीं होगा। खूब रोने लगा कि पेट का कॉलिक पेन आ गया। बदल दिया गया, हटाया गया, चुप हो गया। बोले पेशाब उशाब भी ज्यादा देर रह जाता है, वो जो बच्चा का पहनने का होता है अंदर, तो चिल्लाने लगता है, जल्दी बदलो, जल्दी साफ करो, कपड़ा रहता है, ये सब चीज। आज प्रिस्क्राइब कार्सिनोसिन 200 2-2 घंटा पर देर बंडस, जादू की तरह रिजल्ट हुआ। दैट इज होम्योपैथिक आर्ट ऑफ हीलिंग, दैट इज होम्योपैथी। इसी को करते हैं। आखिर हनुमान ने मेंटल कॉन्कोमिडेंट, मेंटल सिम्टम वेरी इंपॉर्टेंट देन फिजिकल सिम्टम, दीज आर द फीचर। जैसे हमने अभी आपको कहा भी कि अब इतना बज रहा है, देखो तो टाइम 8:55। एक तो केस है बहुत अच्छा, ये हम बताया जरूरी था, क्योंकि अभी हफ्ता 2 हफ्ता का बात है, ये हम बोला भी था, हम बोलना जरूरी है। आई प्रिस्क्राइब कार्सिनोसिन एंड जैसे सिफिलाइनम जो है बहुत डीप सीटेड मेडिसिन है, खासकर क्रॉनिक केस में, क्रॉनिक सिटी में। एक सिफिलिटिक टेंट को तोड़ना इज द वेरी डिफिकल्ट। 5 मिनट है, हम कोशिश करते हैं इसमें बोलने की। ये केस था आपको प्रोस्टेट सीए का केस था। ये हमारा 2 साल हो रहा, 1.5 साल, अच्छा पोजीशन में है बहुत। केमोथेरेपी भी हुआ है उसका, और मेरी ट्रीटमेंट चली थी, तो तकलीफ वापस आ गई थी। हमने इसमें केस टेकिंग करने के बाद प्रोस्टेट कैंसर में हमने सिफिलाइनम प्रिस्क्रिप्शन किया था। पहले 30 दिया था, बहुत अच्छा दिया, फिर 200 दिया था, आधा कप मिला के, उसमें बहुत फायदा हुआ था। तो हमने क्यों दिया सिफिलाइनम? हमने जब हिस्ट्री लिया, उसका 48-50 बरस उम्र होगा, 50, तो हमने ये देखा कि इसका सिफिलिटिक बैकग्राउंड, इसको भी बैड कॉन्टेक्ट हिस्ट्री था, बैड कॉन्टेक्ट का, औरत से ज्यादा मिलना जुलना था पहले, शादी से पहले क्या, शादी के बाद भी।
फिर शराब बहुत पीता था। एक तरह से फिर उसका शंकर साहब के रास्ते पर जख्म शंकर हुआ, का ट्रीटमेंट भी कराया। वो ट्रीटमेंट कराने के बाद ठीक हो गया। बाद में इसका उस दिन के 10 साल 12 साल या 15 साल के बाद को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हुआ, तो बोला कि बढ़ गया है, तो वहाँ ऑपरेशन वो कराया। ये बिहार की बात है, ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद ही उसको उसमें से ग्रोथ टेस्ट हुआ तो सीए निकला। तो केमो चला था, केमोथेरेपी उरोपी के बाद फिर उसका रिलैप्स हुआ 1 साल के बाद। तो फिर हमारे ट्रीटमेंट पे आए, उन लोग के रिलेटिव हमारे ट्रीटमेंट पे। तो हमने ट्रीटमेंट ये केस टेकिंग करने के बाद ये सब चीज मिला। ये सब चीज पाने के बाद हमने कुछ सिफिलानियम दिया, और एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम था क्रेविंग फॉर अल्कोहल, शराब इन एनी फॉर्म। शराब के बिना वो रह नहीं सकता था यंग टाइम से। ऐसा हुआ कि उसको स्ट्रिक्टली रोका गया। तो उसका एक दोस्त था कंपाउंडर, उसके दुकान में बैठ के जो अल्कोहल से हम लोग भी दवा जो बनाते हैं, वो नहीं तो वो शीशी चुरा लेता था, ले लेता था, वो उसको डालता था अपने मुंह पर स्प्रिट। 15-16 साल का उम्र में, 8 साल का उम्र में। और उसके बाद बेगर पिए, बेगर ड्रिंक किए वो रह नहीं सकता था। उसका भी पॉन्टिंग लिप, बिग बेली, बहुत पेट निकला हुआ, शराबी, बहुत शराब पीने वाला। उन लोग का भी सर बहुत जल्दी बाल गिर जाएगा, बाल गिर जाएगा। बहुत एंटी सोशल, झगड़ा फसाद में रहने वाला, झगड़ा में रहने वाला, क्राइम करने वाला, क्रिमिनल टाइप का। तो ये सब हमने केस टेकिंग किया। और डार्कनेस, ऑल सिम्टम अग्रेवेट बाय डार्कनेस, ऑल सिम्टम वर्स बाय नाइट। जहां शाम हुआ तकलीफ बढ़ना शुरू हो गया, शराब पीना शुरू हो गया, तकलीफ बढ़ना शुरू हो गया। जहां सुबह, बोले डॉक्टर साहब जहां सुबह होता रात खत्म होता है, देखते उजाला, डॉक्टर साहब दर्द काफी कम हो जाता है। ऑल नाइट, देयर आर द फीचर्स आई प्रिस्क्राइब। ये शॉर्ट में हम तुमको बोले सिफिलाइन ट्रेमेंडस रिजल्ट। तो हमारे पेशेंट भी वेट कर रहे हैं। So these are the cases, advanced pathological cases, and our topic is today was advanced pathology and no sorts. So in all these cases, the prescription was no sort. So because in relation to type of pathology, depth of pathology, sometimes your well selected remedy will not give you exact results. So at that time we use no sorts. So these are cases, and these are the real examples what homeopathy can do in our daily routine practice. So आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और we are very thankful to Dr. Shoaib Alam Khan sir. He gave us a time because of his busy schedule. So hope so आप सभी ने कुछ लर्न किया होगा, कुछ सीखा होगा आज के सेशन से। और अगर इसके बाद भी अगर आपके पास आपके कोई सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। हम सर को दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए बुला लेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ कन्वर्सेशन मैटर नहीं करती, यहाँ अंडरस्टैंडिंग मैटर कि अगर इस 1 घंटे में आप एक चीज भी सीख गए तो दिस इज अचीवमेंट फॉर अस. This is the motive of this conversation,
एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट डॉक्टर शोएब आलम खान सर, क्योंकि आज उनका बर्थडे है और ही गिव अस द टाइम। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरह से सिखाते रहिए और हम इसी तरह से सीखते रहें। थैंक यू सो मच। इसको जरा सा दोगे, फेसबुक पे भी सब मेरे फॉलोवर सब, आज बर्थडे का गिफ्ट है जी ये। जी जी सर। ये बर्थडे का गिफ्ट है हमारे तरफ से। जी सबको सो मालूम होना चाहिए। जरा सा इसको दिस हम इज चाहते हैं मेरे मोहम्मद खान से बात करके इसको फेसबुक में भी दिया जाए। जी 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 सर। बात कर लेना। हाँ, ठीक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Thank you.